ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں بخیر عافیت سے ہوں گے، اچھی مزاج ہوگی۔ تو آؤ چلو میں آپ کو ایک وزیر کی کہانی اور حقیقت آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ ایک وزیر تھا، بادشاہ کی خدمت میں بہت وفادار وزیر تھا، بادشاہ کی نظروں میں بہت محبوب وزیر تھا۔ ایک دن وزیر بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے وزیر کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر کو کہ آپ جو بھی آج مجھ سے مانگنا چاہیں مانگیں۔ تو وزیر تھوڑا سا شرمایا کہ بادشاہ وقت ہے، میں اس کے سامنے کیسے بولوں، کیا بولوں، مگر بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے بولا جو بھی آج مانگنا ہے مانگو، دل کھول کے مانگو، بغیر شرمائے ہوئے مجھ سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ وقت، میرے دل کے اندر ابھی یہ خیال چل رہا ہے کہ کاش بادشاہ کی بادشاہی کے اندر آدھی بادشاہی میرے پاس ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو بادشاہ نے کہا، اپنے دوسرے وزیر کو بلایا، بلانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آدھی بادشاہی اسی وزیر کے نام کر دی جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا 3 سوال دیتا ہوں اس وزیر کو، وہ تینوں سوال کے جواب سنتوش یعنی ایک دم مکمل اچھی طرح جواب لے کے آئے گا تو ان کو آدھی بادشاہی عطا کر دی جائے گی۔ اگر یہ تینوں سوالوں کے جواب سنتوش یعنی ایک دم اچھی طرح نہ لے کے آیا تو اس کے سر قلم کر دیا جائے گا، سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب یعنی اس وزیر کو بادشاہی تو آدھی مل چکی، مگر بڑی حیرت زدہ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے اس وزیر کے سامنے 3 سوال رکھے اور اس کو مہلت دی 1 مہینے کی کہ ان تینوں سوال کے جواب لے کے آئیے۔ ایک وہ کون سی سچ بات ہے جو ہر انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ رکھی کہ انسان چاہے بھی کتنی وفاداری کرے مگر پھر بھی وہ چیز انسان کو دغا دے کے جاتی ہے۔ تیسری بات یہ رکھی کہ انسان چاہے کتنا بھی تن من جان سے اسی انسان کی وفاداری کرے پھر بھی وہ انسان کو جھوٹا ہی کھانا پڑتا ہے۔ اب وہ وزیر جیسا تیسا تھا ہی نہیں، بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی وزیر تھا۔ اب اس کو آدھی تو سلطنت مل چکی تھی مگر اب اس کے دل کے اندر تینوں سوالوں کے کھٹک اور ان کے جواب سنتوش کے ساتھ ڈھونڈنے میں نکل پڑا۔ دوسرے دن وزیر نے بادشاہی کی رہائی کے اندر تمام علماء کرام اور دانشمند لوگوں کو اکٹھا کیا، 3 سوال سامنے رکھے، بولے وزیر نے بولا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب مجھے مطمئن طور پر اچھی طرح سے دیے جائیں، ایک دم بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ وزیر نے 1 دن نکلا، 2 دن نکلا، اسی طرح 27 دن نکل گئے مگر ان تینوں سوالوں کے جواب کوئی مطمئن طور سے اچھی طرح سے جواب کوئی دے ہی نہیں پایا۔ اب وزیر دل کے اندر ہارنے لگا کہ بادشاہ نے جو تینوں سوال رکھے وہ بڑے عجیب سے سوال ہیں، اس کی سچائی کون بتا ہی نہیں سکتا۔ اب بادشاہی تو آدھی مل چکی ہے مگر اب ساتھ میں اگر ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہے
तो वज़ीर को इस दुनिया के साथ मतलब जाना ही है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, एक ये सोचने की हकीकत है, ये समझने की हकीकत है, ज़िंदगी के सामने ये एक विचार करने की हकीकत है। इंसान इस रूह ज़मीन पर घूमता ज़रूर है, फिरता ज़रूर है, शऊर ज़रूर रखता है, समझ ज़रूर रखता है, मगर कभी कभी वक्त इंसान को सब कुछ सिखा के जाता है। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को वक्त इस तरह उजागर करता है, इस तरह अपनी ज़िंदगी की हकीकत से बाखबर करता है। जो इंसान शऊर रखता है, अक्ल रखता है, समझ रखता है, उसको एक दिन ना एक दिन ज़िंदगी उसको जो हकीकत की मोड़ होती है उस पर लाकर ही खड़ा करती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने अभी वज़ीर की कहानी रखी, तो वज़ीर लालच तो रखता था कि काश अगर बादशाही के अंदर आधी बादशाही मेरे पास होती तो मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुज़रती, मेरी ज़िंदगी बहुत आरामदेह गुज़रती, मेरा नाम होता, लोग मुझे आधी सल्तनत का बादशाह कहते। उसकी लालच थी, उसकी तमन्ना थी, उसकी आरज़ू थी, मगर उसकी आरज़ू तो मिल चुकी, मगर साथ साथ में एक अहम 3 सवाल छोड़ दिए गए। तो इंसान यही तमन्ना लेकर पूरी ज़िंदगी गमाता है, न दिन देखता है न रात देखता। वो ये चाहता है कि मेरे पास दौलत हो, धन हो, शोहरत हो, ऐशो आराम हो। कभी इंसान ने ये गौर किया है कि जिस तरह मैंने दिन रात एक तरह किए हैं, मगर उसकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है? दौलत इकट्ठा कर ली, ऐशो असरत उसने इकट्ठा कर दिया, नाम कमा लिया, मगर उसने विचार किया है कि आखिर इस दुनिया से हमको छोड़कर ही जाना है, आगे जाके हमें क्या करना है। तो चलो मैं आपको उस वज़ीर की पूरी असलियत को उजागर करके रखता हूँ। जब वो वज़ीर 27 दिन तक उन तीनों सवालों के जवाब के पीछे दौड़ता रहा, मगर उसको संतोष जवाब नहीं मिले। अब उसने अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। उसको अब यकीन हो गया, उसको मुतमईन तौर से इत्मीनान हो गया कि अब मेरे तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं और मुझे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। फिर उन्हीं ही तलाश के अंदर वो वज़ीर बजाय खुशी के गमज़दा होकर एक बयाबान जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते इसी गम के अंदर डूबा हुआ चलता चलता भूखा प्यासा उसको एक जंगल के अंदर छोटी सी बिखरी सी झुपड़ियाँ नज़र आई। उसके दहने पर जाकर बैठ गया। वो आराम के लिए कुछ लम्हे के लिए बैठने के लिए वो वहाँ जाकर बैठ गया। इतने में अंदर से एक दरवेश इंसान निकला। उसने आवाज़ दी कि बादशाह के वज़ीर, आप झुपड़ी की दहलीज पर ना बैठें, आप अंदर आके कुछ लम्हे के लिए आराम करें, पानी पिएं और अपनी ज़िंदगी को आराम दें। और आप सही जगह पर आकर पहुँचे हों। आपके तीनों सवाल के जवाब बड़ी संतोष के साथ दिए जाएंगे। अब फ़कीर फिर भी हैरत ज़दा रह गया कि ये एक बयाबान जंगल के अंदर ऐसा कौन शख्स है, मुझे जानता भी है और मेरे तीनों सवालों को इसको मालूम है। तो वो फिर से उसकी ज़िंदगी में एक नई खुशी उठी और उसी झुपड़ी के अंदर जाकर बैठा, पानी पिया, कुछ लम्हे के लिए सुकून भरी सांस ली। फिर उस दरवेश से इंसान ने
फ़कीर के सामने सवालों के जवाब रखे। कहा कि एक वो हकीकत है जिसे इंसान झूठला नहीं सकता है, वो ज़िंदगी और मौत है। चाहे भी इंसान कितना दुनिया में घूमे, मौत से इनकार कर ही नहीं सकता। आखिरकार इंसान को मौत आके ही रहती। उसको बड़ा संतोष हुआ कि बिल्कुल सही बात है, इंसान मौत को झूठला ही नहीं सकता। चाहे दानिशमंद हो, चाहे पागल हो, चाहे कैसा भी इंसान क्यों न हो, मौत आके ही रहती है। तो कहा कि एक तो हकीकत ये है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आप ज़िंदगी से जितनी भी वफा करें, अपनी ज़िंदगी से जितनी भी वफा करें, चाहे दिन रात एक कर दें, मगर एक दिन वो इंसान से बेवफाई करके जाती है। ये खाकी जिस्म मिट्टी तक ही साथ देता है, आखिर तक नहीं चलता है। बादशाह के वज़ीर के सामने दरवेश ने ये सवाल रखे, जवाब रखे, तो उसने कान पकड़ के जवाब दिया, बिल्कुल आपने दूसरा सवाल के मुताबिक जवाब दिया आपने। अब तीसरा सवाल बताइए, जवाब बताइए। दरवेश ने कहा कि उसको आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी मैं तीसरा सवाल का जवाब दूंगा, वरना नहीं। तब वज़ीर ने उस फ़कीर से कहा कि आप क्या उसके बदले में लेंगे, वो आप बताइए तो सही। जो दरवेश बैठा हुआ था वो एक सूखा सा टुकड़ा पानी के अंदर भिगो के खा रहा था। उसके साथ दो कुत्ते बैठे हुए थे, वो बड़े लजीज अंदाज के साथ दूध पी रहे थे। तो उस दरवेश ने कहा उस वज़ीर से कि जो मेरे कुत्ते दूध पी रहे हैं और जो बचा हुआ दूध है वो आपको पीना पड़ेगा। तो वो बड़ा अकड़ा गया। कहे दरवेश, आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? दरवेश मुस्कुराया कि हाँ, मैं जानता हूँ, आप वक्त के बादशाह के वज़ीर हैं, मगर दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दूध ना पियोगे तो बादशाह आपके सर को तन से जुदा कर देगा। चाहे दूध पियो, आपकी मर्ज़ी है, मेरी ज़बरदस्ती कोई नहीं है। ना पिए तो आप बादशाह की बारगाह में चले जाओ, 2 सवाल तो जवाब दे सकते हैं, मगर तीसरा नहीं दोगे तो बादशाह आपके सर को तन से जुदा कर देगा। वज़ीर कुछ लम्हे के लिए सोच में डूब गया, विचारों के अंदर डूब गया। आखिरकार वज़ीर ने मजबूर होकर फैसला करना ही पड़ा। कुत्तों का जूठा दूध यानी बचा हुआ दूध आंखें बंद करके वज़ीर पी गया। दरवेश बड़ी खुशी भरी की अंदर मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा, है वज़ीर, तीसरा जो जवाब था इसी ही में जवाब था। चाहे कितनी भी वज़ीर यानी बादशाह की बारगाह के अंदर आप वफादारी वाली ज़िंदगी गुजारें, आखिरकार आपको बादशाह का जूठा खाना ही पड़ेगा, दुनिया के अंदर खाना ही पड़ेगा। आपने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक कुत्ते का जूठा दूध पीना ही पड़ा। तो मेरे दोस्तों, ये हकीकत है, इंसान चाहे भी कितना साहूकार इस दुनिया के अंदर क्यों ना हो, आखिरकार वो अपनी मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए, आखिरकार उसको ढुकना टेक के जूठा दूध या रिश्वत, उसी की तरफ उसको कदम टेकना ही पड़ता है। भले वो जानता हो कि ये चीज़ करने से ये नुकसान है, फिर भी वो जानबूझ के आंखें सच्चाई पर पर्दा डाल देता है और गुमराही की तरफ मुब्तला हो जाता है। तो मौजूद सामीन, आपको ये मेरी टॉपिक बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप बहुत बड़ी गहराइयों के साथ आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भेजेंगे, और मैं आने वाले समय में आपके लिए और अच्छे में से अच्छी एक और वीडियो बनाऊँ।